Let me see the name of the students who are present today. How many students are attending my classes today? I want to know their name. Let me check. Okay, Anjali, Asit, Anshul, Anupriya, Arpita. Okay. Okay. I am going to start the next topic. If you have any query related to the last topic that we have seen yesterday and day before yesterday, then you can ask. We have completed first topic was the sole proprietorship, second was the joint Hindu family business, third we have started partnership, and we have seen the types of the partners. Do you want to ask anything regarding all these completed topic? Yes or no? तुलिका, ऋत्विका, साक्षी, ऋषभ, सौम्या, निशि, अंशुल, अर्पिता, हर्ष, अनु, स्वर्णिम, कुछ पूछना है तो बोलो या मैं पढ़ूंगा। नो मैम। अच्छा ठीक है, हाँ, but I expect some more students to be present in my class because only 50% students are attending classes. I think only, let me see once again. Okay, more than 50% are attending my classes, but some students who are always present in my class, I am not seeing their name. चलो कोई बात नहीं. Listen carefully. One question related to the case studies. Okay, you have to identify whether it is sole proprietorship, joint Hindu family business, or the partnership. Still, we have not completed partnership, but this question is case study. Okay, listen carefully. No. तो तुम लोग इसको ध्यान से देखो, ठीक है? इसका माइक, हाँ, स्टडी में क्या दिया हुआ है, एक बार मैं पूरी केस स्टडी दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी और फिर हम आएंगे इसके क्वेश्चंस पे. It says a textile factory is going to be started in the nearby area where Gopal, an entrepreneur, is carrying on his business. As a businessman, he is now in a jubilant mood. He is thinking that once the textile factory is set up, he will get more customers, the sales will increase, he will earn more profit. But for all this, he will have to expand his business, and for this, he needs more money. The major problem is additional funds. अच्छा फोन, He has the option of getting सीधा कर दिए मैं नीचे वाला. अच्छा रुको एक मिनट. comes. फोन सीधा कर दे मतलब इस तरह से, ऐसे राइट साइड, राइट में. राइट मतलब इस तरह से. यस मैम, यस मैम. चलो ठीक है, चलो ठीक है. Textile factory is set up, he will get more customers, the sales will increase, he will earn more profit. But for all these, he will have to expand his business, and for this, he needs more money. The major problem is how to arrange an additional funds. He has the option of getting loans from the banks, but the fear of loss comes to his mind again and again. He does not want to take that risk. Another option is that he may join hands with some of other persons. By doing so, more resources can be raised, work can be shared, business can be run in a better way. The risk of loss will also be shared, so he finally decides to join hands with some other persons on the basis. And फिर आता है on the basis of the above answer some question, but वो बाद में बात करते हैं. I hope आपको
थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा क्या है, बट मैं समझा देती हूँ अच्छे से क्या है ये बोलता है कि एक नाम है गोपाल, एक गोपाल नाम का एक इंसान है जो एक एरिया में रहता है। उसके एरिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री आ रही है। अब वो एकदम से बहुत खुश हो गया ये सोच के, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमारे एरियाज में फैक्ट्रीज और ये सब आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे एरिया की तरक्की हो गई। इसको भी बिल्कुल ऐसा लगा। इसको Ma'am, please unmute yourself. हाँ चलो स्टार्ट। हमारे एरियाज में फैक्ट्रीज और ये सब आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे एरिया की तरक्की होगी। इसको भी बिल्कुल ऐसा लगा। इसको लगा एरिया की तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी, मैं ज्यादा अर्न करूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो इसने सारे प्लान्स अपने दिमाग में सोच लिए थे। बट ये वापस रियलिटी में आया तो ये रियलाइज कि अगर मुझे ये फैक्ट्री का फायदा उठाना है, ये फैक्ट्री जो खुल रही है इस चीज का फायदा उठाना है, तो मुझे अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। जब भी हम सोचते हैं हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, करना है, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार पैसे लगेंगे, एफर्ट्स लगेंगे। अब इसने सोचा कि पैसे तो लगेंगे, ये बात तो जग जाहिर है। तो ऐसे सिनारियो में पैसे कहाँ से लेके आएगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के लिए? इसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आए कि बैंक के पास चला जाता हूँ, उनसे पैसे मांग लेता हूँ, रिलेटिव्स के पास चला जाता हूँ, उनसे पैसे मांग लेता हूँ। और फिर आया इसके दिमाग में एक थॉट कि क्यों ना मैं दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लूं, उनके पैसे मेरे साथ ऐड हो जाएंगे, मेरा रिस्क उनके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में इन्होंने क्या बोला, इसने बोला कि यार मेरे को ना यही सही लग रहा है कि मैं किसी के साथ हाथ मिला लेता हूँ, जिससे मेरा वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरे साथ और लोग जुड़ जाएंगे, जिससे पैसे मिल जाएंगे। मैम ये है आपका केस स्टडी। मैम शांभवी का नंबर मैम कनेक्ट नहीं हो रहा है स्नैप होमवर्क पर। अच्छा ठीक है, ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तुम लोग पहले इसको ध्यान से सुनो। ये सुनाई पड़ रहा तुम लोगों को ना, बिल्कुल क्लियर? यस मैम, बट मैम हाँ, वो ठीक। बोल रही है कि उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे भाई छोड़ो, अब अभी पहले हम लोग क्लास कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? उसको बोलो टेक्निकल स्टाफ से बात करने के लिए। ओके मैम। ये तो नहीं आ रहा है। ये देखो ऐड आने लगा तुम लोग। चलो हाँ, ये तो ऐसे हो गया। चलो ठीक। चलो आप ये केस स्टडी दोबारा से देखिए यहाँ पे। नेटवर्क प्रॉब्लम फिर। Another option is that he may join hands with some other person. इसको हाथ मिलाने हैं कुछ और लोगों के साथ। क्या मैं बोल सकते हैं HCF खोलने वाला? HCF ऐसे खुलता है भाई, HCF तो फैमिली बिजनेस होता है, तो फैमिली मेंबर्स के साथ खुलता है। फिर मैं बोलती हूँ क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप तो मतलब सिंगल इंसान होता है। फिर मैं बोलती हूँ क्या ये कंपनी खोल रहा है? नहीं यार, उसमें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती है। तो बचा क्या? ये खोल रहा है पार्टनरशिप फर्म। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में अग्रीमेंट करते हैं और एक नई बॉडी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, एक नई फर्म को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरों के साथ हाथ मिला रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, पार्टनरशिप नाम का फर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है। फिर इन्होंने बोला गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट। क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देखो बच्चों, और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना। अब आंसर बदल सके या पार्टनरशिप, तो आप क्या करेंगे? पार्टनरशिप is association of two or more person who pool their financial and monetary resources and agree to carry on a business and share its profit. अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको ना पार्टनरशिप के सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आपको किसी चीज की डेफिनेशन लिखनी होती है, सारे कैरेक्टर्स, सारे उसके फीचर्स को आपको बस कंबाइन करना है और एक स्टेटमेंट बनानी है कि आपकी बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर की जाएगी। आपको यही करना है, दैट्स इट। सो हमने बता दिया पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी एक कॉन्सेप्ट मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दी। फिर ये बोलते हैं स्टेट द मेरिट्स व्हिच गोपाल विल बी गोइंग टू एंजॉय आफ्टर जॉइनिंग हैंड्स विद अदर पर्सन। इनडायरेक्टली देखा जाए तो पार्टनरशिप के फायदों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पार्टनरशिप के जितने फायदे आपको आते हैं, जितने एडवांटेजेस आपको आते हैं, क्योंकि हमने सारे एडवांटेजेस पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्लब करने हैं और जो आपको मेन लगता है यहाँ पे आपको ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये केस स्टडी बहुत ही प्रिसाइज आंसर मांगते हैं आपसे। ये बोलते हैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है हमें, दैट्स इट। हमें नहीं चाहिए कि आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना कंस्ट्रक्टिव लिखते हो, वो नहीं, वो हम बिजनेस स्टडीज के पेपर में चेक कर चुके हैं, मतलब हम नॉर्मल क्वेश्चंस में चेक कर चुके हैं। हम यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक कर रहे हैं, और जब नॉलेज चेक की जाती है तो कंटेंट प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एडवांटेज। Okay, children, have you seen that question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोगों ने उसको देखा और तुम लोग के पास अब बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ और शो करने वाली हूँ ताकि तुम लोग ना बिजनेस स्टडी में एकदम मास्टर बन जाओ, ठीक है? इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत मेहनत करके तुम लोगों के लिए कंटेंट जमा किया। नाउ आई वांट टू शो यू व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड्स आर देयर, ठीक है? पार्टनरशिप डीड्स, व्हाट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड? दिस टॉपिक इज गिवन एट पेज नंबर 33. At page number 33, actually partnership deed is partnership Agreement. contract or an agreement where partners, they may be 2 in numbers, they may be 3 or 4, whatever number they are, it may be, they are in the partnership. Every partners have to put their signature on the partnership deed, and all of them have to give their consent on terms and conditions. As an evidence, their signature is used, so everybody is abide by the rules and the laws or the terms and conditions given in the partnership upon which they have already put their signature. That is called the partnership deed. In my old NCERT book, at page number 33, partnership deed is given. Before starting that topic, let's see the image of partnership deed. वो होता कैसा है, ठीक है? तुम लोग इसको देखो, मैंने तुम लोग के लिए कुछ कलेक्ट किया है ताकि तुम लोग को अच्छा लगे। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ कलेक्ट किया, तुम लोग इसको ध्यान से देखो। देखो, ये पार्टनरशिप डीड है, ये हो गया टॉपिक पार्टनरशिप डीड। मेरी बुक में पेज नंबर 33 में दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में शायद 35 37 में दिया हो, जो भी है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, वी विल सी। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखो पार्टनरशिप डीड होता कैसा है। भारतीय गैर न्यायिक, ठीक है, 100 रुपए का इसमें स्टैंप लगा हुआ है, और ये दिया हुआ है इंडियन नॉन जुडिशियल, ठीक है? ये हाँ मैम, हम लोग बुक में नहीं दिया पार्टनरशिप डीड। मैम पेज नंबर 39 में दिया है। पेज नंबर 39 दिया हुआ है। देखो Yes, देखो ma'am, जल्दी 39 से मैंने मैम, दिया इतना हुआ मैंने मेहनत। हाँ ठीक है, चलो मिल गया, सबको मिल गया। यस मैम। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर देखो Yes, ma'am. पार्टनरशिप होता है, ठीक है? पार्टनरशिप डीड देखो कैसा होता है, ओरिजिनल कैसा होता है पार्टनरशिप डीड। ब्लर आ रहा है, चलो ठीक है। दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज, ब्लर आ रहा है क्या? थोड़ा सा हेजी दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा मैम बोल दीजिए, सुन लेंगे। हाँ ठीक है, देखो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग देखो। दिस अब सही आ रहा है। हाँ, this deed of partnership is made on this 6th day of March 2013 by and between the following partners, by and between the following partners. 5 partners are there. घिलानी जे है, दलवाडी जुगल है, ठक्कर किशन है, सोलंकी कुंजन है, शाह कृष्णा है। मुझे लगता है कि सारे के सारे गुजराती हैं, क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप में बहुत काम चलता है, बिजनेस वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। Whereas the above named persons, partners have decided to start the partnership because business of manufacturing of textile in the name and style of MS। मतलब ये तुम लोग इसको केवल देख लो, है ना, कि इस तरह का एक्चुअल पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है? पार्टनरशिप डीड नाम का एक पूरा ओरिजिनल पेपर होता है, उसमें कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने लोग हैं, ये सब मेंशन रहता है। क्लियर? ठीक है,
मेरे को क्लियर हो गया? अब इसके बाद Yes, ma'am. अब इसके बाद हाँ, अब तुम लोग एक मिनट रुक जाओ, एक और निकालो तो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो तुम लोग के लिए ना मैंने ये भी रखा हुआ है, देखो ये दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, ये लॉ की किताब है, तुम लोग अब इसको ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास ये बुक थी तो मैंने ये तुम लोग को मैं दिखाने का ये सोची कि मैं तुम लोग को ये बता देती हूँ। ये ओरिजिनल ये बुक है कोर्ट की, ठीक है, हाई कोर्ट की ये किताब है, इलाहाबाद लॉ का सीरीज है ये। तो उसमें ये दिया हुआ है कि होता क्या है, फर्स्ट पार्टी हो गया, ठीक है, फिर इसमें सेकंड पार्टी हो गया, फर्स्ट पार्टी कितना पैसा लगा रहे हैं, फिर इसके बाद ये सारा देखो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, that the investment of rupees 50,000 shall carry on interest of ₹1% per month, ये कंडीशन लिखा हुआ है। that the house tax, water tax and the ground rent, and ये इतना सारा देखो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है ना, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। लास्ट में विटनेसेस तो इसमें नरेश चंद्र है, राम प्रकाश है, these two are the witnesses। अब ये तुम्हारा पूरा एग्रीमेंट बन गया, ये तुम्हारा पूरा एग्रीमेंट बन गया। तो ये पूरा पार्टनरशिप डीड में ये सारा कंडीशंस लिखा हुआ होता है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन से दिस, यहाँ देखो, यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, ये देखो, ये तो हो गया, ठीक है, ये ओरिजिनल है बच्चों, ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है। इसमें देखो जितने भी पार्टनर्स है ना, 1 2 3 4 4 है शायद, इसमें 4 हैं। देखो इन चारों का ना यहाँ पे डॉटर है या सन है, डॉटर है या सन है, ये पूरा मेंशन, देखो यहाँ पे लिखा है एड्रेस, बहुत क्लियर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस है पूरा, कहाँ वो रहते हैं ये सारा मेंशन है। तो ये तमिलनाडु का ये पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा ये टॉपिक हो गया, मैंने इसको तुम लोग को पूरा समझा दिया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, चलो हाँ, तो थैंक यू। नाउ चलो भाई, now we will see the classification on the basis of duration. Yesterday when we have seen the types of the partners, active partners, sleeping or dormant partner, secret partner, nominal partner, partner by we have seen all things. One thing I have missed, that is partner by holding out। ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये मुझसे छूट गया गलती से, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु though is not a partner in a firm but knowingly allows himself herself to be represented as a partner in a firm। पहले मैंने स्वर्णिम का एग्जांपल लिया था कि स्वर्णिम खुद से वो जाती है अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस के डील में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपनी मर्जी से गई है, वो हो गया। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म but knowingly allows himself herself to be represented as a partner in the firm। Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debts। ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी से उसमें पार्टिसिपेट करता है, बिजनेसमैन को ज्वाइन करता है अपनी मर्जी से, तो he or she will play a role like an actual businessman, actual partner, and he or she is liable to pay all the debt। सारा जो उधार है उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी वो अपनी खुशी से अपने ऊपर लेता है। देखो वैसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इफ यू सी एट पेज नंबर 31, चलो तुम्हारे बुक में शायद 33 34 होगा, जो भी होगा, तुम लोग इसका डिफरेंस देखना तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूंगी विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। Let me start the next topic, that is the classification on the basis of duration। Very interesting। Every day in our nearby people, you can see whether he or she is a general partner or limited partner।
ये तुम लोग अपने आसपास देखते होगे, तुम्हारे घर में भी होगा, लेकिन ये क्या है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. First of all, every student must have the NCERT book so that he or she knows at which topic we are concentrating about. किस टॉपिक के बारे में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हारे पास बुक होना जरूरी है. टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. अब इसका पार्ट बनेगा, पार्टनरशिप का. पहला first is on the basis of duration, on the basis of time, on the basis of time. क्या time लगता है? First is partnership at will, partnership at will. दूसरा है particular partnership, particular partnership. पहले सुन लो, मैं बता देती हूँ. Partnership at will means when on the basis of our own intention, intentionally we have joined our hands together to conduct a specific business, and when we want to close it, we can close it. We can close it any time because we do not want to carry out any more. अब अगर मुझे लगता है कि भाई चलो ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो मैंने शुरू कर दिया, मैंने काम शुरू कर दिया. दो लोग हम लोग मिले और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, पैसा लगाया, काम शुरू कर दिया. काम चला 1 साल, 2 साल, 3 साल. अब लगता है दोनों को कि नहीं भाई अब वाइंड अप कर दिया, अब पैकअप करो और जाओ, बहुत फायदा नहीं है, या जितना मुझे पैसे जो चाहिए थे मार्केट से वो मुझे मिल गए, अब मैं उससे कोई एक बहुत बड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, दूसरा बिजनेस. तो आई हैव सेट अप बिजनेस, आई हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑन माई ओन. After 1 to 2 years, where time period is not limited, time period is not fixed. After 2 to 3 years, now I want to pack up, I want to wind up, I want to close my business. Anytime I can close it. And I have closed it. That is called partnership at will. Will means marji. Will means ichha. So, this type of partnership exists at the will of the partners. It can continue as long as the partners want and is terminated. Terminated का मतलब खत्म करना, समाप्त करना. And is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from partnership to the firm. भाई मैं और तुम मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि भाई चलो 2 साल हो गए, अब मुझे काम नहीं करना है, तो मैं उसको बता दूंगी कि भैया मैं तो काम खत्म कर रही हूँ, केवल 2 ही लोग हैं अगर, तो मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया. अब उसे अगर रहना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो काम करे, अदरवाइज द नेक्स्ट पर्सन और द माय फ्रेंड वांट्स टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस. मैंने वाइंड अप कर दिया, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मैं वहां से चली गई, वो भी वहां से जा सकता है. अगर नहीं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो काम करे, अकेले काम करे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है ना. लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने मना कर, अगर 3 लोग हैं मैंने मना कर दिया ताकि 2 लोग काम करें एज अ पार्टनर, नहीं तो वो लोग भी खत्म कर सकते हैं. तुम लोग दोनों मिल करके मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है. अच्छा, ये सारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इट इज पार्टनरशिप एट विल, एनी टाइम आई कैन क्विट. ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है. तो मैं अगर छोड़ दूंगी ना, तो तुम लोग दोनों जिन 2 के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में, तुम लोग क्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में पहले ही हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया था, ठीक है. सेकंड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तुम्हारी बुक में ये टॉपिक है कि नहीं बच्चों? टॉपिक है? यस मैम. Yes, ma'am. चलो ठीक है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप तुम्हारे घर के अगल बगल अपार्टमेंट होगा, तुम्हारे घर के अगल बगल कहीं ना कहीं अपार्टमेंट होगा, या हाँ बिल्कुल होगा. पटना तो सीमेंट का शहर है, पटना तो कंक्रीट का फॉरेस्ट है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं, बहुत कम मिलते हैं. यहाँ पे अपार्टमेंट का ये पूरा शहर है ना. यहाँ पे अपार्टमेंट तुम लोगों ने देखा होगा. तो पटना ऐसे नहीं है, पटना ऐसे है,
है ना। तो अपार्टमेंट कहीं ना कहीं होगा। जब अपार्टमेंट बनना शुरू होता है तो दो बिल्डर आपस में मिलते हैं, काम करते हैं। उन लोग का प्रोजेक्ट था जलालपुर सिटी बना देना, गंगा सिटी बना देना। 3-4 बिल्डर मिले, इन लोगों ने ये सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है। और इसके बाद जैसे प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाना है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, डी, ई, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। मंदिर भी है उसमें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है उसमें, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। ये सारा बन करके 7 साल में तैयार हो गया, ठीक है। आफ्टर 7 years when their project is over, then they can withdraw from the business, they can withdraw from the partnership, but it has been already mentioned in the partnership deed. मतलब इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अकम्प्लिशमेंट, लुक एट योर बुक, दिस वर्ड इज गिवन, दैट इज अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मीन्स कंप्लीट, पूरा हो जाना, कंप्लीट, ओवर हो जाना। तो फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, उन लोगों का एक टारगेट था कि हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे। इस पर्पस के लिए उन लोगों ने पार्टनरशिप में काम शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए काम शुरू किया। खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गया, क्योंकि भाई इन लोगों ने काम ही शुरू किया था उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। बिल्डिंग बन गया, खत्म, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ दे विल पैकअप, वो काम खत्म कर देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी carried on for a specified time period is called particular partnership, is called particular partnership। ये तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब तुम लोग इसको यहाँ पर देखो, ये जो चीज है यहाँ ये पर्टिकुलर, ये पार्टनरशिप एट विल हो गया, एट द विल ऑफ द पार्टनर। जब उनकी मर्जी हुई उन लोगों ने खत्म कर दिया। यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर जब तक काम खत्म नहीं होता है, जब तक प्रोजेक्ट अकम्प्लिश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, अपने विल पर प्रोजेक्ट खत्म होने के पहले पार्टनरशिप को तुम वाइंड अप नहीं कर सकते हो। तो ये ड्यूरेशन पर है, ये कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। ये शुरू हमने किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बिफोर विच वी कैन नॉट पैक अप, ठीक है। तो जैसे काम खत्म होता है ये खत्म हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। अनलिमिटेड एंड जॉइंट, इसका मतलब है कि अगर तुम 3 लोगों ने पार्टनरशिप में काम शुरू किया है तो तुम लोग तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होगी। You all 3 people are responsible for clearing out all the debts which you have taken from the bank. Maybe you have to sell your personal property, लेकिन तुम तीनों पार्टनर्स को अपने सारे प्रॉपर्टी को सेल करके भी तुमको सारे उधार को चुकता करना है। ये हो गया जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर है लिमिटेड पार्टनरशिप। In limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited. In limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड है, एक ने 70% कैपिटल इन्वेस्ट किया, दूसरे ने केवल 30% कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका ज्यादा पैसा है, जिसने ज्यादा पैसा लगाया है, वो 70% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 30% उसका होगा नेक्स्ट वाले का। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि इसमें अगर 2 पार्टनर्स हैं, दोनों में से एक ने सारा पैसा लगाया है, दूसरे ने थोड़ा भी पैसा नहीं लगाया है, दूसरा केवल फील्ड वर्क करता है, केवल अकाउंटेंसी का वर्क करता है, ऑडिटिंग करता है, बिजनेस को थोड़ा बहुत संभालता है, तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है।
उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना उसको बिजनेस से पैसा मिलता है उतनी लायबिलिटी है। लेकिन पहले वाला आदमी जिसने सारा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड है, उसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड है, क्योंकि बिजनेस में सारा इन्वेस्टमेंट उसी आदमी की है। तो सारा इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर का होगा उसी पार्टनर का अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जिसने थोड़े भी पैसे नहीं लगाए हैं वो केवल डिसीजन मेकिंग बॉडी में वो हेल्प करता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। But the person who has invested 100% money, he will get profit, maximum profit, and the next partner, he is liable only to the extent of the money which he is getting from the business. ठीक है, ये लिमिटेड पार्टनरशिप, ये इसमें दो लोग होंगे, दोनों की जवाबदेही जिम्मेदारी बराबर है, दोनों लोग अपना पर्सनल प्रॉपर्टी देकर के भी पैसे चुकाओगे। यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी होती है जो सारा पैसा लगाता है, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी चुकाएगा। दूसरा जो पार्टनर होगा वो उसको हेल्प तो करता है लेकिन उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, वो थोड़े बहुत पैसे दे करके डेट चुका सकता है लेकिन वो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा क्योंकि उसने पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। तो जितना उसको प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर्स की तरह, ठीक उतना ही वो लायबिलिटी बेयर करेगा, दैट्स ऑल। But the first person has to bear all types of responsibility in an unlimited way. ये लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ये मैंने बता दिया, तुम लोग क्या करोगे, ये इसका देखो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। The written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership is called the partnership deed. This is a particular definition in a very simple language, but about it in detail in this portion content is given. Each and every line is very important, you cannot leave any one, but it can be written when you are asked to write the answer for 3 to 4 marks. Listen carefully, if the question is carrying only 1 mark, you have to write only that much. That is the definition of the partnership deed. But the same question is carrying 3 to 4 marks, then you have to write this whole paragraph. ठीक है, 3 से 4 नंबर के लिए तुमको सारा लिखना होगा, लेकिन अगर 1 नंबर में आएगा इसके बारे में लिखने के लिए, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तुम लोग बच्चों पढ़ लेना, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ होता है, नेचर ऑफ फॉर्म, कैसा फॉर्म है, क्या काम कर रहा है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, कितने समय के लिए बना है पार्टनरशिप, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, ठीक है। उज्जवल ने कितना पैसा लगाया था, उत्कर्ष ने कितना पैसा लगाया था, और प्रॉफिट कैसे बटेगा, लॉस कैसे होगा, ड्यूटी क्या होगा, सैलरी क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है, सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। ये भी होता है प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, तुम इसको डिसॉल्व कैसे करोगे, डिसॉल्व मीन्स व्हाट इज कॉल्ड डिसॉल्व, Closure of the company or firm. हाँ, क्लोजर ऑफ द कंपनी और द फॉर्म, ये कैसे क्लोज करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी इसका होता है, ठीक है, ये अप्रूवल लेना होता है, वेदर यू आर entitled to open your business or to start your business or not, ठीक है। Registration of a partnership form means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particular in the register of the firm. ये रजिस्ट्रार होता है, हर स्टेट में रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, वहां जाकर के तुमको अपने बिजनेस के लिए परमिशन लेना होगा, तो परमिशन लेने के कोर्स में ये सारा चीज तुमको वहां पर देना होगा। क्या क्या चीज जो यहाँ था वो सेम यहाँ पर है, नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस, ये सारा कुछ होगा, ठीक है, ये सारा कुछ होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड इट, अच्छा, ये फीचर तुम लोग देख सकते हो क्या, तुम लोग फीचर अपने से देख लेना, ठीक है, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। 2 or 3 students have left the class. I do not know why they have left the class, but it is very bad भाई, मैंने नाम देख लिया कितने लोग इसमें से क्विट किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, ठीक है,
मैं अभी क्लास शुरू करने के पहले, चलो बाय, मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ, क्लास शुरू करने के पहले मैं जल्दी जल्दी देख रही थी कि क्या क्या मुझे तुम लोग को दिखाना है ताकि तुम लोग सब कुछ जानो। ठीक है, चलो ओके बाय। इकोनॉमिक्स का मार्क्स आज मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मार्क्स आज मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके मैम ओके बाय, ओके बाय, ओके मैम हाँ बाय मैम बाय मैम हाँ बाय 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 बाय।